So, dear students, let's start the next part of the chapter Wave Optics. In previous lecture, we have studied Newton's law of corpuscles and Huygens wave theory, उनके assumptions, merits and demerits. Now let's start new topic, light as a wave. Remember, these are few important points which we will discuss. Light is an electromagnetic wave. I mean to say it is not mechanical wave, because mechanical wave is a wave which require material medium, while electromagnetic wave doesn't require any material medium for its propagation. Number 2, it is transverse in nature. When I say transverse in nature, then I mean to say कि let's consider these three things. Suppose we have, this is electric field, this is magnetic field, then the wave will travel in a direction perpendicular to both electric field and magnetic field, and therefore since it is perpendicularly moving, therefore it is transverse in nature. The word transverse means perpendicular. I use the word it is transverse in nature, but not the transverse wave, because transverse wave is a part of mechanical wave, so we just use the word that it is transverse in nature. I hope आपको समझा रहेगा. Next, it consists of tiny oscillating electric and magnetic fields. जैसे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो फील्ड्स रहेंगे, and these two fields are mutually perpendicular to each other, और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर में मूव करेगा. Now they do not require material medium for propagation and can travel through vacuum. I hope you got it, because mechanical wave cannot travel through vacuum, but it can travel through vacuum. Speed of light in any medium is given as V equal to C by mu. Actually original formula क्या रहता है? Mu is equal to, it is C upon V, where C is the speed of light in vacuum and V is the speed of light in any medium. Therefore we can say mu is equal to C by V, और इसी से हमको ये मिला V is equal to C by mu. I hope ये आपको समझा रहेगा. Next part, they have wavelength ranging from 10 raised to minus 15 to few kilometer, मतलब 10 raised to minus 15 meter, we can say femtometer, to few kilometers तक उनके wavelength है. Number 7, in increasing wavelength they are gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible rays, infrared rays, microwaves and radio waves. ये जो रेडियो वेव्स वगैरह हैं ये अपने को काम आते हैं टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा. तो इनके लिए आजकल मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स में होती है. विजिबल लाइट रेज हैव वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. मतलब नैनोमीटर मतलब 10 रेज टू माइनस 9 मीटर. जनरली हम लोग लिखते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम. एंड रिमेंबर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 10 मीटर. ये आपको याद रखना है. अच्छा, इन जितने भी जो विजिबल लाइट रेज है उनमें सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो होता है रेड कलर का,
और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो होता है वॉयलेट कलर का. सो रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वॉयलेट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. नाउ रिमेंबर that refractive index of medium depends upon the wavelength used. Up important thing. What do you mean by wave front? ये अभी जो next points है they are very very important. We'll discuss what do you mean by wave front. इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सपोज हमारे पास में मान लो ये एक पॉइंट सोर्स है. ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट. Then what will happen? Actually, light waves will travel in all possible direction. For example, अगर मैंने कहा कि suppose यहाँ से light wave है, it will start and in the form of crust, trough, ये आगे चलता रहेगा. Everywhere in the form of crust, सब waves, ये wave in the form of crust, trough, ऐसा वो सब चलता रहेगा. तो क्या होगा कि suppose for example in time t ये इसका light था और इन टाइम टी ये वेव यहाँ तक पहुँचा. तो वो जो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू सी, हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो वेव है यहाँ तक पहुँचेगा ऐसा. सो ये जो आपको बाउंड्री मिला, ये बाउंड्री मिला, एक्चुअली इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट. व्हाट वी से? वेव फ्रंट. तो एक्चुअली कैसा है कि ये जो वेव था उसका ये लोकस है, दूसरे वाला वेव का ये लोकस है, तीसरा वाला एक और वेव आएगा उसका ये लोकस आएगा. So I mean to say, what's a wavefront? Wavefront is the locus of all the particles of medium. Wavefront is the locus of all the points of a medium बोल सकते हैं, all the particles of medium बोल सकते हैं. So wavefront is the locus of all the points of a medium which are in the same state of vibration. ये सब के सब सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में. कैसे मालूम पड़ेगा? आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से ये जो आपका सोर्स था, जब यहाँ से यहाँ तक मान लो एक वेवलेंथ हुआ. डू यू नो वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ इज कॉल्ड एज वन वेवलेंथ. तो ये भी वेवलेंथ हुआ. एंड व्हेन डिस्टेंस कवर इज लैम्बडा देन फेज चेंजेस बाय 2 पाई. तो इसका फेज 2 पाई. ये भी वन क्रस्ट वन ट्रफ, इसका फेज भी 2 पाई. वन क्रस्ट वन ट्रफ, इसका फेज भी 2 पाई. Hence we can say that all these, can I say that particles are in the same state of vibration. They are in the same state of vibration. तो एक्चुअली ये जो आपका पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट. तो एक्चुअली वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम which are in the same state of vibration. Which are in the same state of vibration. I hope you got it. और we can say they are in the same phase. तो ये जो लोकस है उसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट. I hope you got it. Now, depending upon the time and the type of source, there are 3 types of wavefront. Suppose for example the source is a point source. ये आपका point source है, याद रखना, source is a point source. दूसरा, the time and distance is very very small. टाइम और डिस्टेंस बहुत बहुत कम है. तो जैसे फॉर एग्जांपल टाइम बहुत कम है तो डिस्टेंस बहुत कम रहेगा. और इसको जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको व्हाट यू ऑब्जर्व दैट, अब जैसे ये आपका सोर्स था तो यहाँ से वेव इधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, एवरीवेयर जाएगा, मतलब वो सब जगह पे जाएगा. सो व्हाट यू ऑब्जर्व दैट इट विल इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर एंड दिस इज कॉल्ड एज स्फेरिकल वेव फ्रंट. सो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं? Number 1, the source should be a point source. Number 2, time or distance should be very very small. And point number 3, wave normals are diverging. अब एक्चुअली ये वेव नॉर्मल क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये आपका सोर्स है, तो अगर आप वेव फ्रंट को अगर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया वेव फ्रंट को, जैसे ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द वेव फ्रंट इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल. तो ये आपका वेव नॉर्मल है. सो दीज आर कॉल्ड एज वेव नॉर्मल, ऑल्सो नेम्ड एज रे ऑफ लाइट. ऑल्सो नेम्ड एज रे ऑफ लाइट. द नॉर्मल और perpendicular drawn to the wavefront is called as wave normal, also named as ray of light. I hope ये आपको समझ गया. अच्छा, ये सोर्स ऑफ जे अब आपका ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है,
तो अगर आप मुझे बताइए कि ये जो आपका वेव नॉर्मल है ये कैसा रहेगा। यहाँ से आपने वेव नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये साइड में आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये साइड में आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इन दिस वे द परपेंडिकुलर ड्रॉन इज कॉल्ड एज wave normal, called as wave normal. The normal or perpendicular drawn on the wavefront is called as wave normal. So wave normals are parallel, wave normals are diverging. Wave normals are diverging because they all are in different directions. तो याद रखिए वापस, in case of spherical wavefront, what we have the three things. Number one, the source should be a point source. Number two, time or distance should be very very small, and wave normals are diverging. अब जरा ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो मैंने इसी स्फेरिकल वेवफ्रंट को अगर मैंने टाइम बढ़ा दिया, तो डोंट यू फाइंड दैट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हल्का सा और टाइम बढ़ा दिया, यहाँ पे और आपने टाइम बढ़ा दिया, यहाँ पे आपने और टाइम बढ़ा दिया, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डोंट यू फाइंड दैट दिस बिकम्स ऑलमोस्ट पैरेलल। एंड व्हाट यू ऑब्जर्व दैट, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे देन आपको ऐसा लगेगा कि आफ्टर सम टाइम इट इज़ ऑलमोस्ट अ प्लेन। तो जब रेडियस कम रहता है तो वो ज़्यादा कर्व ही रहता है, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे कर्व कम होता जाएगा। ये तो आप सोचो कि केवल 15 सेंटीमीटर में इतना ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गया, और जब डिस्टेंस विल बी ऑलमोस्ट किलोमीटर्स के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के अंदर, तो दे विल बी ऑलमोस्ट परफेक्ट प्लेन। एंड देयरफॉर वी कैन से स्फेरिकल वेव फ्रंट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन कब, उसमें कंडीशंस है। नंबर वन, द टाइम और डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लार्ज। द टाइम और डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लार्ज, एंड वेव नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो आपका वेव नॉर्मल्स है, ये वेव कैसे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो वी कैन से वेव नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो प्लेन वेव फ्रंट के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो। नंबर वन, सोर्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ पॉइंट सोर्स, इट कैन बी अ लाइन सोर्स, कोई भी चलेगा। ओनली कंडीशन क्या है, द डिस्टेंस और टाइम शुड बी वेरी 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 लार्ज। एंड पॉइंट नंबर थ्री, वेव नॉर्मल्स आर पैरेलल। ये जो आपका वेव नॉर्मल है, सो यू कैन सी दैट वेव नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। आई होप यू गॉट इट। तो ये था आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये था आपका प्लेन वेव फ्रंट। Now, what do we mean by cylindrical wavefront? For cylindrical wavefront के लिए the source should be a line source. ये आपका एक line source रहेगा. Then यहाँ से suppose जैसे every point on the wavefront act as a source of light. तो यहाँ पे what will happen? Actually it will form a spherical wavefront. हर एक point रहेगा, सर्कल रहेगा. तो आप हर एक पॉइंट पे आप स्फीयर ड्रॉ करते रहिए। तो जब हर पॉइंट पे आप स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो आपको लगेगा कि विच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज फॉर्म। अगर आपने इसको ज्वाइन किया सबको सब, देन व्हाट विल फॉर्म, यू विल ऑब्जर्व दैट इट बिकम्स अ सिलेंडर, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसके अंदर द वेव नॉर्मल्स आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। वेव नॉर्मल्स आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो आप उसके तीन पॉइंट बोलो। नंबर वन, सोर्स शुड बी अ लाइन सोर्स, टाइम और डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, एंड वेव नॉर्मल्स आर डाइवर्जिंग, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इट इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। आई होप यू गॉट इट। तो आइए आपको सब समझ गया रहेगा। ये वेव फ्रंट है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल, then plane. Actually spherical gets converted into plane कब, when distance is very very large, और उसके बाद में जब large distance होगा ना, तो these rays मतलब wave normals will be almost parallel to each other. So for plane wavefront, source can be of any type, wave normals are parallel, and distance or time should be very very large. For cylindrical wavefront,
सोर्स शुड बी अ लाइन सोर्स, इट शुड बी अ लाइन सोर्स जिसको बोलते हैं लीनियर सोर्स. टाइम और डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एंड वेव नॉर्मल्स आर डाइवर्जिंग. तो ये तो आपका वेव नॉर्मल है. सो दीज वेव नॉर्मल आर डाइवर्जिंग इन नेचर. आई होप यू गॉट इट. नाउ सो प्लीज व्हाट इज द हाइजीन्स प्रिंसिपल. इसके पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी सोर्स एंड व्हाट डू मीन बाय सेकेंडरी सोर्स. एक्चुअली प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है. फॉर एग्जांपल एनी स्टार, एग्जांपल सन, क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है एंड देयरफॉर दे एमिट लाइट. जिनके पास खुद की लाइट होती है उनको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स. और उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल जो दूसरों से लाइट लेते हैं और वो लाइट को आगे ट्रांसफ़र करते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स. फॉर एग्जांपल मून. अभी मून क्या होता है? मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ विच टेक्स द लाइट फ्रॉम सन. जो सन से लाइट लेता है और वो लाइट हमको देता है. तो सन क्या हो गया? प्राइमरी सोर्स. मून क्या हो गया? सेकेंडरी सोर्स. आई होप यू गॉट इट. सो एनी source which produces light is called as primary source and a source which simply supply the source is called as secondary source. ये आपको समझ गया. अब ये सबसे important point है, what do you mean by Huygens principle. तो आपके पास में एक वेव फ्रंट है और एक्चुअली ये वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट है. आई होप यू गॉट इट. तो अभी इसमें कैसे है कि वी कैन से लेट्स कंसिडर अ स्फेरिकल वेव फ्रंट. सो अभी ये जो मेन सोर्स है ये हो गया आपका प्राइमरी सोर्स. कौन सा हो गया? प्राइमरी सोर्स. और इसके बाद में जो आपका ये वेव फ्रंट है इसका नाम है सेकेंडरी सोर्स. तो हम क्या बोलेंगे? एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, every point on the wavefront acts as secondary source of light. ये आपको समझा ना, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स था और ये सेकेंडरी सोर्स है. So every point on the wavefront acts as secondary source of light and emits secondary wavelets in all possible directions. Actually जब मैं बोलता हूँ all possible तो इसका मीनिंग होता है only in the forward direction, only in the forward direction. So emitting light waves in all possible directions. Actually light never goes backward. तो जब अगर लाइट यहाँ से ऐसे आ रहा ना तो ये पॉइंट से लाइट वापस पीछे नहीं जा सकती है, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा. इज दैट क्लियर? सो पहला स्टेटमेंट क्या था? एवरी पॉइंट यानी ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड एमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स. तो जो मेन सोर्स था उससे जो वेव्स निकलता है उसको बोलते हैं वेव लेंथ, और जो वेव्स सेकेंडरी सोर्स से निकलेगा उसको बोलते हैं वेवलेट्स. आई होप यू गॉट इट. सो एमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विथ कांस्टेंट स्पीड. हर जगह उसका स्पीड सेम रहेगा. इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि ये आपका सेकेंडरी सोर्स हुआ, तो ये भी इसको आप सोर्स ले लो और क्या करते हैं फिर इसको हल्का सा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये लाइट यहाँ तक चला गया इस साइड में. इज दैट क्लियर? ये सोर्स से भी जो लाइट है वो ये डायरेक्शन में चला गया, ये सोर्स से भी जो लाइट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया. अभी हम लोग ये एनवेलप है किसका? सेकेंडरी वेवलेट्स का. तो ये जो एनवेलप है इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे. तो जिसको ज्वाइन करेंगे ना तो आपको न्यू वेव फ्रंट मिल गया. तो न्यू वेव फ्रंट इज नथिंग बट व्हाट? एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. आई रिपीट, the new wavefront is the envelope of secondary wavelets in forward direction. In forward direction. I hope you got it. And remember, the light never travels in backward direction. तो ये था आपका हाइजेंस प्रिंसिपल. एक बार फिर, it's a very very important. Every point on the wavefront acts as secondary source of light and emits secondary wavelets in all possible direction. मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. So every source on the wavefront acts as secondary source of light
and emits secondary wavelets in all possible direction with constant speed. ये point number 1. Second, new wavefront can be obtained by joining the tangential points. मतलब new wavefronts can be obtained by enveloping the secondary wavelets. So secondary wavelet, or we can say the new wavefront, is the envelope of secondary wavelet. Is the envelope of secondary wavelets. And remember, the secondary wavelets are more effective in forward direction as they never come in the opposite direction. I hope you got it. This is called as Huygens principle and very, very important. Now, dear students, let's start construction of spherical wavefront using Huygens principle. तो आप spherical wavefront कैसे ड्रॉ करेंगे? लेकिन याद रखना, अगर आपको spherical wavefront चाहिए तो आपके पास में spherical wavefront होना चाहिए पहले. तो सपोज हमारे पास में एक wavefront है और वो spherical wavefront है. नाउ रिमेंबर, इसको हम नाम देंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट. ये आपका spherical wavefront है एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0. तो t इक्वल टू 0 पे हमारे पास में एक spherical wavefront है. इज दैट क्लियर? नाउ अब आपको ये भी मालूम है कि एवरी पॉइंट ऑन द wavefront एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. तब हम क्या करेंगे, आप इस पर कोई भी 3 पॉइंट ले लो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और कोई भी आप इस पर 3 पॉइंट ले लीजिए. मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं A, B एंड C. तो याद रखना, एवरी पॉइंट ऑन द wavefront एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. नाउ अभी ये जो पॉइंट है इसमें से लाइट वेव्स भी निकलेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो आप क्या करो, आप इसके ऊपर यू ड्रॉ वेव नॉर्मल्स. तो हम लोग ने ये पासिंग दिस वन वी हैव ड्रॉन वेव नॉर्मल्स. व्हाट्स अ वेव नॉर्मल? इट्स अ रे ऑफ लाइट. सो वी हैव ड्रॉन द वेव नॉर्मल्स पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स. ठीक है, लेकिन आप याद रखना कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट acts as secondary source of light and will emit secondary wavelets in all possible direction. तो ये source of light हुआ, यहाँ से secondary wavelets निकलेगा और यहाँ तक गया, यहाँ से भी secondary wavelets निकलेगा और यहाँ तक गया. They may intersect, they may not, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है. यहाँ से secondary wavelet निकलेगा तो ऐसा आपने ड्रॉ कर दिया इसको secondary wavelets को. I hope you got it. अच्छा, ये जो आपके पॉइंट A था, तो इस पॉइंट का नाम है A डैश, इसको बोलें टेंजेंशियल पॉइंट. ये भी आपका B डैश, ये भी आपका C डैश. नाउ अभी कैसा है कि सपोज जैसे आप लोगों ने A डैश, B डैश, C डैश, इसको आप लोगों ने ज्वाइन किया, ये एनवेलप हो गया. तो अब आपने क्या किया, इसको आपने हल्का सा ज्वाइन किया ये पॉइंट से. तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक नया एनवेलप मिलेगा और वो एनवेलप क्या होगा, न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट. एंड दिस इज योर new spherical wavefront at an instant t. अच्छा, we know that distance is equal to ct. Distance is equal to ct. Therefore, we can say this distance is nothing but what? It is ct. So ct is the new distance. Ct is the new distance. So this is your new spherical wavefront. This is your new spherical wavefront. I hope you got it. So in this way we can produce or we can construct new or spherical wavefront using the Huygens principle. I hope you got it. अब देखो आप एग्जाम कैसे लिखेंगे. Consider a source of light emitting light waves in all possible directions. Consider a spherical wavefront at the instant t equal to 0. Since every point on the wavefront acts as secondary source of light and emits secondary wavelets in all possible directions with constant speed, select 3 points A, B and C on the wavefront. Now
let c be the speed of light, the in time t, the distance traveled will be ct. Then taking ct as radius and a as center, we have drawn an arc in the forward direction. Similar arcs are also drawn by taking b and c as centers. Now let a dash, b dash and c dash be the tangential points. By joining these tangential points, a new spherical wavefront can be obtained. In this way, we could construct spherical wavefront using Huygens principle. I hope आप सबको समझा पक्का. Now, construction of plane wavefront using Huygens principle. आपको plane wavefront कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए डेफिनेटली आपके पास में एक प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए. तो हमारे पास में ये प्लेन वेव फ्रंट है. सो लेट्स कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0. हमारे पास में ये प्लेन वेव फ्रंट है. इज दैट क्लियर? नाउ अभी चूंकि प्लेन वेव फ्रंट है, इसका मतलब सोर्स इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस. Therefore, wave normals are parallel to each other. So consider 3 points. उसको आप नाम दे दो सपोज से P, दूसरा पॉइंट को नाम दे दो आप Q एंड तीसरे पॉइंट को आप नाम दे दो R. So we can say P, Q and R are 3 points. Because ये wave front है, so they will be named as secondary source of light. They will be named as secondary source of light. Is that clear? Now अभी कैसे है? Then ये आप इस पे wave normals ड्रॉ कर दो. तो सबसे पहले wave normals, क्योंकि they are coming from infinity, so wave normals will be parallel to each other. Wave normals will be parallel to each other. Now अभी आपका wave normals हो गया. अब हम क्या करेंगे? जैसे every point on the wave front acts as secondary source of light. Let c be the speed of light. In time t, the distance will be ct. So taking ct as radius and p as center, we have drawn an arc. उस प्रकार आप q को सेंटर लेके और एक नया आर्क ड्रॉ कर दो, और आप r को सेंटर लेके और एक नया आर्क ड्रॉ कर दो. So the envelope of these arcs will give you new wave front, and therefore अभी आप इनका जो tangential points है इसको आप नाम दे दो P dash, this is Q dash and this is R dash. So by joining the P dash, Q dash and R dash, a new spherical wave front can be obtained. तो ये आपका नया spherical wave front हो गया. So these are ray of light. इसको आप देते हैं T, and this distance between this is called as CT. ये distance कितना रहेगा? CT, क्योंकि C is the speed of light, T is the time. So the distance, speed into time. तो CT is the speed distance. CT is the distance. So ये हो गया आपका new wave front. So this is nothing but what? We call this as new plane wave front. I hope you got it. एक बार फिर ध्यान दीजिए. Once again, consider a plane wave front at the instant t equal to 0. ये आपके पास में एक plane wave front है t equal to 0 पे. अच्छा, उसके बाद में since every point on the wave front acts as secondary source of light and emits secondary wavelets in all possible directions with constant speed. So let P, Q and R be the secondary wavelets. I mean secondary points है, secondary source है. Taking C as a radius and T is the time, the distance will be CT. Taking P as a center and CT as radius, and arc is drawn. Similar arcs are drawn by taking Q and R as centers. By joining the tangential points P dash, Q dash and R dash, we have drawn new plane wave front. I hope you got it. Pakka.